Okay. So now we are doing the second derivative, d2w upon dz square. Second derivative, d2w upon dz square. Chalo. Ali Muhammad. So d2w upon dz square will be equal to derivative of this one. 21 is the constant, it will remain as it is, into derivative of z raised to power 6 will be 6 z raised to power 5 minus 21, again constant. Derivative of z square will be 2z plus 42. Derivative of z will be 1. The answer is, the final answer will be equal to 21 into 6 will be 6 ones are 6, 6 twos are 12, 126 z raised to power 5 minus 21 into 2 will be 42 z plus 42 into 1 will be 42. This is the second derivative of w with respect to z. The first w is equal to 3z raised to power 7 minus 7z raised to power 3 plus 21z square. So the first derivative dw upon dz will be equal to 3 into 3 is constant, that will remain as it is, and the derivative of z raised to power 7 will be 7 into z raised to power 6. Then minus 7 is constant, and the derivative of z cube will be 3z square plus 21. The derivative of z square will be 2 into z. So final answer of the first derivative will be equal to 3 into 7, 21 z6 minus 7 into 3 will be 21 z square plus 21 into 2 into z, 42z. This is the first derivative. Now second derivative, that means the derivative of the derivative. Second derivative is the derivative of the first derivative. So second derivative d2w upon dz square will be equal to 21 will remain as it is. Derivative of z raised to power 6 will be 6 z raised to power 5. Then minus 21 is constant, it is as it is. The derivative of z square will be 2z plus 42 into derivative of z will be 1. So that is 21 into 6, 126 z raised to power 5 minus 42 z plus 42. This is the second derivative, final answer of the second derivative. So this is the second derivative and the first derivative of w. So that was question number 4. Now we will do question number 6. We will do question number 6. That is in the fraction.
Question number 6. Y is equal to x cube upon 3 plus x square upon 2 plus x upon 4. We find the first and second derivative. Up to question number 12, we have find both the derivatives, first and second. Okay. Here, this is in fraction. We can't apply this rule. This is the rule for when the numerator as well as denominator both are the functions of x. ये रूल उस वक्त अप्लाई होगा जब दोनों ऊपर वाला भी नीचे वाला भी न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर द फंक्शंस ऑफ एक्स. यहां दोनों फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे वाला नहीं है. तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब. इसी तरह 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स. अगर न्यूमरेटर x का फंक्शन है तो नीचे वाले को हम एज ए कांस्टेंट ले आएंगे. यहाँ जो भी कोफिशिएंट है दिस अपॉन दिस, दैट इज द कांस्टेंट. कोफिशिएंट यहाँ जो भी है 1 है 1/2. यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है 1/4. यहाँ अगर 3 होता तो 3/2 हो जाता, यहाँ 5 होता 5/3 हो जाता, कांस्टेंट अलग हो जाता और ये फंक्शन ऑफ एक्स सेपरेट हो जाता. इसको रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह. अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. ये कांस्टेंट इनटू द फंक्शन है, कांस्टेंट इनटू द फंक्शन है, कांस्टेंट इनटू द फंक्शन. अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे. dy अपॉन dx द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. जैसे ये कांस्टेंट था a, इसका डेरिवेटिव जब लिया तो a एज इट इज रहा. तो कांस्टेंट 1/3 एज इट इज रहा एंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विल बी 3x स्क्वायर plus 1/2 constant as it is raha. Derivative of x square will be 2x plus 1/4 as it is raha. Derivative of x is 1. Further simplify किया इसको, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बच गया. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया. 1/4 into 1 will be 1/4. ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x प्लस derivative of x will be 1 and the derivative of 1/4 will be 0. This is the constant separate without the function of x was 0. So final answer will become 2x plus 1. ये second derivative को final answer आ गया. Always the and m makara.
Now we will do the next question. Next question we are doing question number 7. तो याद रखें ये फार्मूला u अपॉन v का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। यहाँ क्या था, न्यूमरेटर सिर्फ फंक्शन ऑफ x था, डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x नहीं था। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया, 1/3 इंटू एक्स क्यूब कर दिया। इस तरह हमने, अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x ना हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम अलग कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 7। W is equal to 3z raised to power -2 minus 1 upon z. W is equal to 3z raised to power -2 minus 1 upon z. अब ये देखिए 1 अपॉन z ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ऊपर कांस्टेंट है, नीचे सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। दोनों फंक्शन ऑफ x नहीं है। फ्रैक्शन में तो है फंक्शन, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन ऑफ x नहीं है। नीचे फंक्शन ऑफ x है। अगर नीचे फंक्शन ऑफ x हो तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, 3z raised to power -2 एज इट इज लिख दिया, और 1 अपॉन z को लिख दिया z raised to power -1, z raised to power -1। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको हमने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1 अपॉन z से z raised to power -1 में लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस फंक्शन का, इसका नहीं लेते, इसका लेंगे। ये हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको, तो dw अपॉन dz। नाउ w इज अ फंक्शन ऑफ z है, तो एक चीज याद रखिए, आप लकीर के फकीर मत हो जाइएगा कि dy अपॉन dx ही लिखना है, ख्वाह उसका जिक्र हो या ना हो क्वेश्चन में। तो आपने जो क्वेश्चन में w और z का जिक्र है, तो आपने w और z को ही यूज करना है, y और x का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो याद रखिए, जब बात जो है रुपीज की है तो आप रुपीज में पेमेंट करते हैं, जब आप डॉलर की बात होगी तो डॉलर में ही पेमेंट करेंगे। ये नहीं कि आपने ही रुपीज ही करना है। अब्दुल्ला शाहीर 1 अब्दुल्ला डबल 1। अम्मार वसीम ओके। तो द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बिकम dw अपॉन dz, ठीक कांस्टेंट है। z रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव
-2 नीचे आ जाएगा और z रेज़ टू पावर -2 में से -1 कर देते हैं। इसी तरह माइनस, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो z रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू z रेज़ टू पावर -1 पावर में से -1 कर देंगे, हर एक में से -1 किया जाता है, क्लोज। So the answer will become 3 into -2 will be -6. Z raised to power -2 -1 will be -3. Now -1 into -1 will be +1. Z raised to power -2. This is the first derivative. -6 Z raised to power -3 plus Z raised to power -2. Now the second derivative. d2w upon dz square. d2w upon dz square. -6 कांस्टेंट है, एज इट इज रहा, और z रेज़ टू पावर -3 का डेरिवेटिव -3 इंटू z रेज़ टू पावर -4 -1 करेंगे, इसमें से -3 -1 विल बिकम -4 प्लस z रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव -2 रहा, और z रेज़ टू पावर -2 में से -1 करेंगे, इट विल बिकम -3. So the final answer will become minus minus plus 18 z raised to power -4 plus minus minus 2 z raised to power -3 -2 z raised to power -3. So this is the final answer of the second derivative. Final answer of the second derivative. Usman. Mohammed Hussain. Okay. So understood. ये समझ गए बेटा आप लोग कि इसको कैसे करना है, कि पावर माइनस होगी तो उसमें भी -1 हमें पावर करनी है, तो वो बढ़ जाएगी, नेगेटिव नंबर बढ़ जाएगा उसका। पॉजिटिव होगा तो उसमें से -1 करेंगे तो कम हो जाती है पावर, पॉजिटिव पावर कम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव पावर में जब -1 करते हैं तो वो पावर एक बढ़ जाएगी, नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी। वैसे तो नेगेटिव नंबर छोटा ही होता है और छोटी हो जाएगी पावर, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर बढ़ जाता है, नेगेटिव पावर बढ़ जाती है। अच्छा, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव में हम इसको आंसर देना चाहें तो ये हो जाएगा z रेज़ टू पावर -4 को नीचे लाएं, 18 पर पावर 1 है, पॉजिटिव 1 है तो ये ऊपर ही रहेगा, कोई पावर नहीं इस नंबर पर, इसका मतलब इसकी पावर 1 है तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन z रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा अगर पॉजिटिव पावर में करना है। इस तरह ये -2 पे पावर 1 है तो ये ऊपर ही रहेगा, और ये z रेज़ टू पावर -3 नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर में करना है तो इसका आंसर ये होगा। इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव का भी आंसर पॉजिटिव में करना है तो -6 अपॉन z क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, वो आंसर में तो लिख सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्म का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, ऊपर ले जाकर उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है। इसका अगर फर्दर डेरिवेटिव लेना चाहें तो इस फॉर्म में हम नहीं ले सकते, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसी फॉर्म में। ये ऊपर जाकर -4 करेंगे, ये भी ऊपर जाएगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है।
तो ये याद रखने की बातें हैं, इनको नोट करना है आपने, इनको याद रखना है। उस्मान, उस्मान अहमद, बेटा आपको रिमूव कर दूं क्या मैं? नो सर, क्यों? यार क्यों, ये फालतू मैसेज करने की क्या जरूरत है तुम्हें? यहाँ ये पढ़ाई हो रही है, फालतू मैसेज हो रहे हैं क्या? आई एम मैंने बैक, आई एम तो बैक, आई एम फ्रंट। सर, ये कोई उस्मान आए हुए, दो आए हुए, वो बगैर तस्वीर वालों को निकाल दे। बगैर तस्वीर वाले? अच्छा, दो आए हुए हैं। ये अच्छा तो मैं एक को और निकाल देता हूँ, मैं एक को निकाल देता हूँ भाई। ये सर। मेरे ख्याल से खुद ही निकल गया वो। खुद ही निकल गया वो बेटा। जी सर, वो निकल गए। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। उसको पॉजिटिव इंडेक्स में करना है तो इस तरह लिख दें इसको। Okay. Now we will do the next question. Next question is question number 8. Razaul Mustafa.
Now the next question, question number 8. S is equal to t minus 1 over t whole raised to power 3. तो अभी इन कुछ फार्मूलों में हमने कोई आपको ऐसा फार्मूला नहीं बताया जो होल पावर का हो। हमने सिंपल फंक्शन की पावर बताई है x रेज टू पावर n। हमने कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया x प्लस वाई होल रेज टू पावर n हो। तो वो फार्मूला नहीं बताया, तो हम इसको पहले ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। वो फार्मूले भी हैं लेकिन वो हम बाद में आपको बताएंगे, वो चेन रूल कहलाता है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल हम इसको ओपन करके इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब का इसमें फार्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी होल क्यूब क्या फार्मूला है? ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब का। ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और अगर ये प्लस ए प्लस बी होल क्यूब होता तो सब प्लस हो जाते, बस इतना फर्क है। ए प्लस बी होल क्यूब होता तो सब प्लस हो जाते, और ए माइनस बी होल क्यूब है तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस। ऑल्टरनेट में प्लस माइनस आ रहे हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू ए क्यूब, ए है हमारे पास टी होल क्यूब, फिर माइनस का साइन 3 ए स्क्वायर यानी टी का होल स्क्वायर इंटू बी, बी है 1/t। जब हम ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो बी को यहाँ माइनस के साइन के साथ नहीं लिखना, एज इट इज लिखना है, यहाँ वाले साइन यूज करने हैं। बी को सिंपल बी लिखना है, माइनस बी नहीं लिखना, -1/t नहीं रखना। ये फार्मूले वाले माइनस और प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ए है टी और बी है 1/t होल स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब -1/t होल क्यूब। So now it will become s is equal to, इसको ओपन कर ले, t क्यूब -3, ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/t है, प्लस 3 ये t है, ये 1/t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और t का स्क्वायर t2 हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और t का क्यूब t3 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये t एक t से कैंसिल हो गया, एक ये t एक t से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास s इज इक्वल टू टी क्यूब -3t, क्योंकि ये t कैंसिल हो गया, 3t बच गया सर, यहाँ नीचे वाला एक t कैंसिल हुआ, +3 अपॉन t -1/t क्यूब। ये सिंपल हो गया। अब इसमें होल पावर का फार्मूला नहीं रहा, लेकिन इसको हम नीचे पावर है इनको ऊपर ले जाएंगे ताकि हम इसका डिफरेंशिएट कर सके, इसका डेरिवेटिव लिया जा सके। तना फैसला
ओके, अब इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि इसका डेरिवेटिव लिया जा सके। s इज इक्वल टू टी क्यूब, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, माइनस 3t, ये भी ऑलरेडी ऊपर है, ये t ऊपर चला जाएगा, 3t रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा माइनस t रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। इसमें हमने t -1 ओवर टी होल क्यूब का फार्मूला लगाया, t का क्यूब है -3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर t का स्क्वायर इंटू 1 ओवर t प्लस 3 ab स्क्वायर, a की जगह t लिख दिया, b की जगह b स्क्वायर की जगह 1 ओवर t का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस b क्यूब 1 ओवर t होल क्यूब, ये t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर इंटू 1 ओवर t प्लस 3t 1 ओवर t स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर t क्यूब हो गया, ये t स्क्वायर एक t से कैंसिल हो गया, सर t बच गया, तो टी क्यूब माइनस 3t, फिर ये टी एक टी से कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1 अपॉन टी, 3 अपॉन टी हो गया, -1 ओवर टी क्यूब, इसको ऊपर ले गए, ये ऑलरेडी ऊपर है, ये ऑलरेडी ऊपर, इसको ऊपर ले गया, 3t रेज़ टू पावर -1 माइनस t रेज़ टू पावर -3, दैट्स ऑल। टाइम से आया करें, वेटिंग रूम में हो तो बेटा मैं कोई वो नहीं कर सकता कि क्वेश्चन छोड़ छोड़ के हर वक्त बोर्ड पे नजर रखूंगा या आप स्क्रीन पे नजर रखूंगा, आपको टाइम से आना चाहिए, जब टाइम से आते सबको इन करके उसके बाद मैं शुरू करता हूं। वेटिंग रूम में तो वेटिंग रूम में रहना चाहिए आपको, व्हेन यू आर कमिंग लेट। नाउ द ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट एंड यू आर कमिंग 10 और इसमें तो 1 मिनट लेफ्ट है, अब आप लोग आ रहे हैं, मैं कब से उसमें वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूं। ट्रिपल 1 ओके, तो ये आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ds अपॉन dt द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा मुझे ना, फॉर्मूला इसका। तो तुम आए लेट हो ना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। टी क्यूब का क्या होगा, 3t स्क्वायर ये बस फॉर्मूला दोबारा समझा दीजिए एक दफा ना। टी रेज़ टू टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मुझे काम करने दो भाई, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, टाइम खत्म हो रहा है, सर आप ही नहीं करते सर, मैं कब से वेटिंग रूम में था, अभी नहीं कर रहे थे मुझे सर, मेरा क्या कसूर है। टी रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1 टी रेज़ टू -2 माइनस टी रेज़ टू पावर -3 का डेरिवेटिव। साइड में क्या लिखा है सर, आपने इतने सारे लिस्ट क्या बनाई है साइड में। माइनस टी रेज़ टू पावर -3 का डेरिवेटिव -3 टी रेज़ टू पावर -4